ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ उस मेयर की टन्योर इतिहासिक गराउनी है। हमारे जो सियासतदान हैं जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े समझदार हैं, उनके साथ अब जो मेयर का पदभार भी संभालेंगे वो हमारे शहर में नया कंसेप्ट क्या लेके आएंगे जिससे बिज़नेस बढ़े, टूरिज़्म बढ़े, लोगों को नौकरियां जो जिनको चाहिए वो मुहैया हो। पंजाब में नगर निगमों के चुनाव हुए करीब 2 महीने का समय होने को है और जनता में भी निगम में मेयर की नियुक्ति को लेकर कई प्रकार के सवाल हैं जिन्हें 15 अप्रैल को मेयर की नियुक्ति के साथ पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि पठानकोट में कांग्रेस ने निगम चुनावों में बहुमत हासिल कर लिया था, पर मेयर की नियुक्ति पर सभी पठानकोट वासियों के मन में संशय है कि कौन होगा पठानकोट नगर निगम का दूसरा मेयर जिसे कल मेयर की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। कैसा हो नगर निगम का मेयर और पठानकोट के प्रबुद्ध नागरिक आने वाले मेयर में क्या कुछ खास देखना चाहते हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का मेयर को लेकर क्या कहना है। ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਔਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MC ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਔਰ ਫਿਰ ਆਸ और उम्मीद दे नाल और शुभ कामनावां नाल सुनेहा देना चाहते हैं कि जिहड़े आने वाले मेयर ने वो अपना कारोबार कल संभालन और आंदे ही जिहड़ा पूरी निष्ठा दे नाल मेहनत दे नाल लगन दे नाल शहर दी जिहड़ी है और इलाके दी है जिहड़ी सेवा दे विच जुड़ जान। धन्यवाद। साडी भी आस है कि जिहड़ा भी मेयर आए तो कम से कम शहर की बेहतरी दे बारे एक विस्तृत प्लान बनाए, विचार करे, ईमानदाराना विचार करे और पठानकोट का कारोबार ते जिस तरह कि हर शहर के कारोबार अगे नूं वधदे ने इत्थों के कारोबार हर वारी थेले नूं आंदे ने और एक खुशकिस्मती है कि पठानकोट पंजाब का भी गेटवे है, हिमाचल का भी गेटवे है, J&K का भी गेटवे है। 3 स्टेटां नूं जोड़न वाला ये शहर एक खूबसूरत शहर बन जाए, एक बेहतर शहर बन जाए तो ये शहर पूरे देश नूं एक दिशा दे सकता है कि पठानकोट शहर टूरिस्ट के तजाज नाल
ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਮੇਅਰ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਰਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੇਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਕੋਪ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਮਟਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾ, ਜਸੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾ, ਕਠੂਏ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਅਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦੌੜੇਗਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਕੋਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ बहुत अच्छी ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ सके। धन्यवाद। 7C न्यूज़ की सारी टीम का स्वागत है यहाँ पे। बड़ा अच्छा लगा कि आप बड़ा अच्छा सर्वे कर रहे हैं इस बारे में और आम लोगों की राय भी ले रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। बड़ा अच्छा प्रश्न है जी आपका कि मेयर कैसा होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि पठानकोट शहर बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया और ईश्वर का नवाजा हुआ शहर है। यहाँ पर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और जो बुज़ुर्ग चले भी गए यहाँ से, अभी तक उन सब का आशीर्वाद है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। पठानकोट शहर को मैं शहर ना मानता हुआ अपने व्यूज़ दे रहा हूँ कि मैं अपना परिवार मानता हूँ कि यहाँ शहर में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, जितनी भी दुकानें, ये सब हम एक परिवार हैं। हम एक शहर में नहीं रह रहे, एक परिवार में रह रहे हैं। तो अब आपकी बात पे आते हैं कि मेयर, तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी मेयर का पदभार संभाले, जिम्मेवारी संभाले, वो होगा तो हमारे परिवार से निकलेगा। ठीक है जी। तो जब वो परिवार का शख्स, हमारा पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, जब वो परिवार का शख्स, मैं मेयर को एक परिभाषा दे रहा हूँ परिवार के शख्स की, शायद ये नई परिभाषा होगी, तो वो जो परिवार का शख्स जो हमारा उस पदभार को संभालेगा, तो यकीनन हमारी उससे बहुत उम्मीदें भी होंगी, हमारी ख्वाहिशें नहीं होंगी, उम्मीदें होंगी। अब जो शख्स मेयर बनेगा उसको अपने काम की जानकारी भी पूरी होगी, ऐसे तो उसको बैठाया नहीं जाएगा। तो हम उसको उसके काम के बारे में याद दिलाएं या बताएं, तो ये मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी वहाँ बैठेगा, उस पदभार को संभालेगा, उसको भली भांति मालूम है कि मैंने करना क्या है। ठीक है ना जी, उसको ये जानकारी पूरी है। तो फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं अपने शहर रूपी परिवार के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि भैया, जो भी आदमी, जो भी शख्स, जो भी हमारे इस शहर के परिवार का शख्स जो इस पदभार को संभाले, हम उस पर जिस प्रकार का एक अंधा विश्वास करेंगे, वो इस विश्वास को हमेशा हमेशा अपने कार्यकाल में बना कर रखे, तो वो सदैव इस पद पर आसीन रहेगा, उसको कोई नहीं हिला सकता। शहर की क्या ज़रूरतें हैं, शहर वासियों की क्या ज़रूरतें हैं, ये वो सब भली भांति जानते हैं। और इस बातचीत में मैं अपने आदरणीय मेरे भाई, हमारे MLA श्री अमृतवीर जी का भी नाम लूँगा। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत समझदार हैं, वो पढ़े लिखे हैं और सही को सही और गलत को गलत कहने वाले इंसान हैं। तो उनका भी जो डिसीजन रहेगा और उनकी भी जो सपोर्ट रहेगी उन मेयर साहब को, तो यकीनन शहर के बारे में अच्छा ही होगा
और शहरवासियों के लिए भी अच्छा होगा। क्या ज़रूरतें हैं, देखिए, एक मैं थोड़ा सा विषय को कहीं और लेकर जाना चाहता हूँ, अगर मैं समय की कोई पाबंदी ना हो तो। सड़कें बनाना या स्ट्रीट लाइट्स अच्छी देना या फिर सीवरेज, पीने का पानी, ये सब एक ज़रूरतें हैं, ये बेसिक नीड्स हैं। ये तो हमारे एमएलए साहब, आगे मेयर साहब भी आएंगे, ये वो सब कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। डेवलपमेंट हम उसको वो मानते हैं कि इसके साथ साथ हमारे शहर में नया कंसेप्ट क्या आ रहा है। ठीक है जी, मैं फिर दोहराऊंगा कि ये जो हमने बातें की ना, सड़कें बनाना, ये गलियां बनाना, ये तो हमारा एक, ये तो है ही, बेसिक नीड है, ज़रूरत है। अब जैसे हम अपने घर में मेंटेनेंस करते हैं, घर में साफ़ सफाई करते हैं, अपनी दुकान में साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरह ये शहर जो हमारा परिवार है, इसमें भी ये चीज़ें होनी चाहिए, हो रही हैं। लेकिन आगे की अगला स्टेप क्या है, वो ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े समझदार हैं, उनके साथ अब जो मेयर का पदभार भी संभालेंगे, वो हमारे शहर में नया कंसेप्ट क्या लेके आएंगे जिससे बिज़नेस बढ़े, टूरिज़्म बढ़े, लोगों को नौकरियां जो जिनको चाहिए वो मुहैया हो। अब मैं सुबह बैठ के जब प्रभु के चरणों में बैठता हूँ तो मैं अरदास विनती यही करता हूँ कि हे प्रभु, कि जिसको नौकरी चाहिए उसको नौकरी दे, जिसको बिज़नेस चाहिए, व्यापार चाहिए, उसको व्यापार दे, सबके घर में सुख समृद्धि शांति बना के रखें। हम यही अरदास विनती, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमें एक दूसरे को संभाल के चलना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, ना ही आम जनता के साथ, बनिस्बत हमें अपने पॉलिटिशियंस के साथ भी उनके साथ कंधा मिला कर चलना पड़ेगा। वो हमारे साथ चल रहे हैं, हम भी उनके साथ चलेंगे। तो इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा भैया कि मेयर जो भी आए, परमपिता परमेश्वर उन पे अपनी कृपा रखें, वाहिगुरु उन पे अपनी कृपा रखें। नवरात्रे चल रहे हैं, मैं शहरवासियों को अब मौका मिल ही गया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रों की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि माता रानी हम सब पे मेहर भरे अपना हाथ रखें हम सब के सर पे। और ये जो नियुक्ति होने जा रही है कल, जिस शख्स को भी बिठाया जाएगा, हमारी शुभ कामनाएं उनके साथ हैं। महामाई के दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, बड़ा शुभ दिन है, बड़ा अच्छा फैसला हो रहा है कि नवरात्रों में नियुक्ति की जा रही है, बड़ा अच्छा साइन है ये, दिस इज़ अ गुड साइन व्हाट आई से। तो महामाई कृपा करें, जो भी ये पदभार संभालें, और ईश्वर की कृपा, महामाई की कृपा, सच्चे पातशाह की कृपा, और हमारे जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हमारे शहर में बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है। और फिर कहूँगा कि हमारे एमएलए साहब अमित विज, वो भी बहुत समझदार हैं, वो सब समझते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे करना है। और जो भी मेयर पद पर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना कार्य बखूबी निभाएंगे, बढ़िया निभाएंगे, और शहर को विकास की तरफ लेके जाएंगे, और केवल बातों में नहीं लेके जाएंगे, और प्रैक्टिकली लेके जाएंगे। और यही मैं चाहता हूँ उनसे। धन्यवाद जी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।